Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Chavda Chemistry and Biology tutorial. In this video we will discuss about chemical properties of acids and bases. This means the reactions of acid and bases with metals and other chemical compounds. The first of all we will discuss about reaction of acids with metal. Reaction of acid with metals. What happen when acid react with metal, or what happen when metal react with acids? When metal react with acid, salt and hydrogen gas is formed. When metal react with acids, salts is formed and hydrogen gas is evolved during these reactions. For example, when zinc granules is added to the sulfuric acid, H2SO4 is the sulfuric acid. This is the zinc, this is sulfuric acid. When zinc react with sulfuric acid, zinc displaces the hydrogen from this compound and ZnSO4 plus H2 is formed, where ZnSO4 is zinc sulfate and this is hydrogen gas. Take a test tube, and put some sulfuric acid in it. This is sulfuric acid. Now put some zinc granules in the test tube. When we put the zinc granules, then a gas is evolved from the test tube. This gas is hydrogen gas. How will you detect the evolved gas is hydrogen gas? This means कि जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करेंगे तो यहां से एक गैस इवोल्व होगी. ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस इवोल्व हो रही है, निकल रही है, वो हाइड्रोजन गैस है? सो वी विल पुट ए tubular pipe and close the mouth of a test tube. By closing the mouth of test tube and putting a tubular pipe into the soap solution, here we will take a beaker or any container in which soap solution is added. This is the soap solution. When zinc granule react with sulfuric acid, then a gas is evolved. This gas will be passed through a tube into the soap solution. When this gas is passed into the soap solution, then some bubbles are formed. Some bubbles will be formed. These bubbles are air bubbles or hydrogen gas bubbles. When a lighted candle
the lighted candle, the burning of the candle part, when these air bubbles come in the contact of the fire or the burning candle, then these bubbles burn with pop sounds. When these bubbles come in the contact of the burning candle, then these bubbles also burn with a pop sound. This means this pop sound indicating that the releasing or evolving the gas is हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब है कि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स को डालेंगे, टेस्ट ट्यूब का माउथ क्लोज करने के बाद इसके अंदर एक ट्यूब डालकर जब इसका माउथ क्लोज करेंगे और इस ट्यूब को हमने कहां पास करना है, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर. जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी, जो गैस इवॉल्व हो रही है, जो गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, वो गैस इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर आएगी. तो सॉफ्ट सॉल्यूशन के जैसे अंदर आएगी तो यहाँ से क्या होगा, इस सॉफ्ट सॉल्यूशन से कुछ बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, कुछ बबल्स बनेंगे, फॉर्म होंगे. और जब इन बबल्स के पास हम लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को लेके आएंगे, और जब ये बबल्स इस बर्निंग कैंडल के पास या इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये बबल्स भी बर्न करने शुरू कर देंगे, ये बबल्स भी जलने शुरू कर देंगे. जब जलेगी, ये बबल्स जब जलेंगे तो एक साउंड आएगी, वो कौन सी होगी, पॉप साउंड. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड. This indicate that the releasing gas is hydrogen gas. इसका मतलब है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी हाइड्रोजन गैस है. तो कैसे पता चला, जो एयर बबल्स यहां से जो बबल्स निकले हैं, जब उन बबल्स को बर्निंग कैंडल के पास या इन बबल्स के पास जब बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बर्न करके एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, और पॉप साउंड सिर्फ हाइड्रोजन गैस की ही होती है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस. तो जब मेटल्स सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बनेगा. जिंक सल्फेट इज द साल्ट. द अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हेन मैग्नीशियम react with sulfuric acid, it will form magnesium sulfate plus hydrogen gas. When sodium react with HCl, this is the hydrochloric acid, this is sodium. When sodium react with hydrochloric acid, then Na and Cl react to form NaCl, which is sodium chloride. This is the common salt used in our home, and hydrogen gas is released. Hydrogen gas is released. So what happen here? Metals react with acid, they will form salt and hydrogen gas is released. Another example, this is the examples of reaction of metal with acid. Zinc react with sulfuric acid to form ZnSO4 plus hydrogen gas. Zinc react with HCl, it will form zinc chloride plus hydrogen gas is released. Magnesium react with HCl to form MgCl2 and hydrogen gas is released. Like that, magnesium react with HCl to form CaCl2, calcium chloride, and hydrogen gas is released. Sodium react with HCl, it will form sodium chloride and hydrogen gas is released. Sodium react with HNO3, it will form, this is the nitric acid. When sodium react with nitric acid, it will form sodium nitrate and H2, hydrogen gas is released.
तो these are the acid: sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, and another is the acetic acid. When sodium react with acetic acid, then sodium acetate is formed and hydrogen gas is released. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे जो भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल क्या काम कर रही हैं, यहां से इन कंपाउंड में से क्या कर रही है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हर कंपाउंड्स के अंदर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So this is the reaction of acid with metal. The next topic is reaction of metal carbonates or hydrogen carbonate with acids. Yeah, or what happen when metal carbonates and metal hydrogen carbonate react with acid. The reaction of acid with metal carbonates and hydrogen carbonates, metal carbonates. What happen when metal carbonates and hydrogen carbonate react with acids? The metal acids plus metal carbonate react to form salt plus carbon dioxide plus water. When acids react with metal carbonate or hydrogen carbonate, salt and water is formed and carbon dioxide gas is evolved during this reaction. जैसा हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था कि जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसी तरीके से एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आपको यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी होगी कि जब भी एसिड्स, यहां पे जितनी भी हम एसिड्स की रिएक्शन करेंगे मेटल्स के साथ या मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ या हैलोजेंस के साथ, तो यहां पे ये एक कॉमन कंपाउंड बनेगा विच इज साल्ट। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी रिएक्शन करेंगे तो एक तो साल्ट बनेगा ही बनेगा, और उसके साथ किसी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, किसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, किसी के साथ कोई गैस रिलीज नहीं होगी, सिर्फ वाटर, साल्ट और वाटर बनेगा। तो यहां पे जो हमने मेटल कार्बोनेट्स पढ़ने हैं वो मेटल कार्बोनेट कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेटल जब रिएक्ट करेगी, यहां पे मेटल ले रहे हैं हम HCl और मेटल इज HCl। तो क्या होगा कि जब हम यहां पे रिएक्शन करेंगे HCl, तो जब यहां पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये दो NaHCl के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहां पे आपको एक चीज और माइंड में रखनी है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब यहां पे क्या होगा, साल्ट बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। तो हम यहां पे पहले लिख देते हैं साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर यहां पे देखें, यहां पे सोडियम 1 है, यहां पे सोडियम 2 है, यहां पे सोडियम 1 है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना। तो यहां पे क्या है, यहां पे सोडियम 1 है, यहां पे सोडियम 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जो NaCl है
सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो चुका है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। इसका फॉर्मूला ये रहेगा, जो आगे बैलेंस करना है तो इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे उसके, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे Cl कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे Cl कितने हैं, 1। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, 2H ये रही, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास HCl, कितने HCl है, 2 HCl, और दूसरा क्या है हमारे पास Na2CO3, हमारे पास 2 Na है और 3, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये रिएक्ट कर जाएगा, ये क्या बन गया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहां से क्या बचा, 2H, H और H रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2, और A को यहां से ये दोनों मिलकर क्या निकाल देंगे, H2O, और बाकी क्या बचा, CO2। तो जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट एंड वाटर बन रहा है। लाइक दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, देन यहां पे हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा, NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। यहां पे क्या है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, कितने हो गए H, यहां पे H हो गए 2। CO3 में ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहां से निकालेगा और क्या बना देगा, H2O, और बाकी क्या बचा हमारा, CO2। तो व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, salt, water is formed and carbon dioxide gas is evolved in this reaction. Like that, the metal carbonates is also, जैसे HCl है तो मेटल कार्बोनेट हमारा क्या होगा, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी यहां पे बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये भी कार्बोनेट है। तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये रिएक्ट करके बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। सेकंड क्या होगा, 2H ये रहे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो यहाँ क्या बचा, CO2 प्लस वाटर। तो यहां पे जब ये मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज का हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हाउ विल वी डिटेक्ट द इवॉल्व्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन होगी तो वही सेम थिंग करेंगे। हमने टेस्ट ट्यूब ली, अंदर इसके एक ट्यूब डाल दी, ऊपर से इसका माउथ क्लोज कर दिया, और इस ट्यूब को हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर डाला, और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है। क्या लिया यहाँ पे, लाइम वाटर, और यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो क्या है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर और स्लैक्ड लाइम। तो क्या होगा, यहां पे हमने सॉल्यूशन लिया किस चीज का, Na2CO3, और इसके अंदर हमने और क्या पुट किया है, एसिड। एसिड कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, HCl। तो क्या होगा, यहां से गैस इवॉल्व होगी, जब वो गैस यहां से इस ट्यूब से होती हुई कहां आएगी, लाइम वाटर के अंदर आएगी। तो यहां पे क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, और जो गैस पास हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CaCO3 प्लस H2O। यहां से क्या होगा, हमारे पास ये CaOH ट्वाइस ये है, यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा,
यहां से रिएक्ट करके क्या बना दिया, HHO H2O, क्या बन गया यहाँ पे H2O। तो कैल्शियम एक यहां है Ca, कार्बन एक यहां है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2, एक ये रही, क्या बन जाएगा CaCO3। जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, हमें क्या पता चलेगा कि ये बना है, यहाँ पे क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी तो इस चीज के क्या बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी तो इसके यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे की ओर, बीकर के अंदर नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो नीचे सेटल डाउन हुआ है वो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा। उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। जो नीचे सॉलिड क्रिस्टल, जैसे हमने पानी के अंदर मिट्टी डाली, मिट्टी क्या होगी, अच्छे से शेक करेंगे तो मिट्टी नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगी, जो ब्राउन कलर की मिट्टी नीचे बैठ गई, सॉइल नीचे सेटल डाउन होगी, लाइक दैट। यहाँ पे व्हाइट की रिएक्शन होगी, जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बता रहे हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे रखा, तब जब लाइम वाटर यहाँ रखेंगे और यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, तो इसका मतलब है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, दिस मींस द इवॉल्व्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आवर सेकंड टॉपिक, व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। तो यहाँ पे हम एसिड और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे HCl लिया है तो यहाँ पे हम H2SO4 भी ले सकते हैं। अगर हम H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनेट Na2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4। जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला Na2SO4, बाकी वही H2 ये रहा, ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी H2O, बाकी CO2 बन गया। तो क्या होगा कि जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट वाटर फॉर्म होते हैं, बनते हैं, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ ऐसा एरो लगा देंगे। इसका मतलब है अगर ऊपर की तरफ हमने अगर यहाँ पे ये बना दिया, तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो क्या हो रही है, यहाँ से इवॉल्व बाहर की तरफ उड़ रही है। और यहाँ पे जो ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसके बारे में लिखेंगे कि ये प्रेसिपिटेट बना है, कैसे पता लगाएंगे, इसका एरो लगाएंगे नीचे की ओर। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जिस कंटेनर के अंदर हो रही है ये वहां पे नीचे की ओर जाके सेटल डाउन हो रहा है। क्या चीज है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस मींस कि जो सब्सटेंस बना है वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहा है। दिस मींस यहाँ पे जो गैस बन रही है वो बाहर की तरफ उड़ रही है। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। In next lecture we will discuss about another chemical property, reaction of acid and base together. What happen when acid and base react together? Reaction of acid with metal oxide, reaction of acid with metal, reaction of metal with chlorine. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Thank you and have a nice day.